जी होने वाला है। अभी तो हो गया, 9 तो बज गया। हाँ, नमस्कार। स्पीक मेकी के इस अनुभव श्रृंखला में हम आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो हमें देख रहे हैं उनका स्वागत करते हैं। और हम बताना चाहते थे कि आज हमारे बीच में होत्रिया डांस की न सिर्फ एक समर्थ कलाकार बल्कि एक समर्थ गुरु भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें इस अवसर पे बहुत बड़े बड़े गुरुओं को सुनने का मौका मिला है, उनके ज्ञान का हमें लाभ मिला है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जो हमारे बीच में आज गुरु और कलाकार आ रही हैं, श्रीमती अनीता शर्मा जी। इत्तेफाक से उनके गुरु भी कुछ दिन हमारे बीच में आए थे, विद्वान जतिन गोस्वामी जी। तो एक बहुत सुंदर अवसर है कि हमें उनसे उनके गुरु के बाद बात करने का मौका मिलेगा। मैं आज की गुरु श्रीमती अनीता शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जो वार्ता करेंगे गुरु जी से, श्रीमती अनीता शर्मा जी से, वो हमारे स्पीक मेकी के बहुत ही ब्राइट, डेडिकेटेड यंग वॉलंटियर हैं। वो उनका परिचय पढ़ेंगे और साथ में उनसे वार्ता करेंगे। मैं केतन शर्मा से अनुरोध करता हूं कि वो आए और श्रीमती अनीता शर्मा जी का संक्षेप में परिचय दें, औपचारिक परिचय दें और वार्ता को आगे बढ़ाएं। चेतन शर्मा। नमस्कार। A very warm welcome to all our viewers here. स्पीक में के अनुभव 2020 की इस श्रृंखला में आज हम श्रीमती अनीता शर्मा जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुई हैं, मैं उनके साथ में आज आगे की कार्य शुरुआत करता हूं। और मैं उनको सबसे पहले वेलकम करता हूं। वेलकम मैम। So I would first introduce ma'am to all of you present here. I'll just read a little about her. Anita Sharma, a leading Hotriya exponent, is one of the most prevailing and compelling dancers of India. Anita conquered an inevitable pace in the world of Hotriya, an exquisite dance form of Assam. She has devoted herself to learn Hotriya dance under Padma Shri Nityacharya Jatin Goswami. Anita ji, be it teaching, performing, prorogation, preservation, or encouragement, for more than a decade, she has totally devoted herself to the promotion of this dance form. Born in a distinguished family with a rich cultural heritage, Anita ji was initiated into the field of Hotriya when she was barely 7 years old. She had her early training under late Guru Roseshwar Hoikya Borbayan. She is daughter of late Pulin Kumar Harma and mother Srimati Amya Harma, and she is a granddaughter of late Padma Vibhushan Menendhar Harma, who was a great historian of Assam. She also has been trained in the art of Odissi by Guru Srimati Garima Hoikya, a Sangeet Natak Academy awardee, and later she had gone under training of late Guru Padma Vibhushan Kelucharan Mohapatra at Bhubaneswar. She is the founder director of her own institution, Abhinaya Dance Academy, Guwahati, where she imparts training in Hotriya dance to young aspirants. On behalf of Abhinaya, annually she organizes Parampara, a national dance and music festival. She has been conferred with the prestigious Sangeet Natak Academy Puraskar by the Government of India in 2014. She has been also conferred with Devdasi Award, Nritya Vidushi Samman, Natyasri Prag Samman, and Bharat Kala Rakshini, and 12th Guru Deva Prasad Award in 2018.
She is also an empaneled solo artist of the ICCR and an active artist of Speakmaker. So, ma'am, we welcome you with us, and we are really pleased to have you among us today. I would like to start the interaction from you, and I would request you to please explain a little bit about this art form to all our viewers present here. Namaskar. Satriya dance. Satriya dance is one of the major classical dance form of India, evolved during the later part of 15th century. It Srimanta Honkordev, the great saint and poet, who was a playwright, artist, social reformer, and his foremost disciple, Mahapuru Srimanta Madhavdev, who himself was a prolific composer and credited with several compositions in Satriya style. Satriya dance originated in the Hotra, the Vaishnava monastery founded by Mahapuru Srimanta Honkordev. ये जो सत्रिया डांस है, Hotriya dance, we pronounce Hotriya dance. Hotriya dance is originated in Hotra, founded by Mahapuru Srimanta Honkordev. To propagate the Vaishnavism in Assam, he created this multiple art form in Assam and creating a conducive environment in that period. But now, this living tradition, Hotriya dance form, performed with Hotra as a medium of bhakti to the God and as a performing art in modern stage. ये जो Hotriya dance के बारे में थोड़ा हिस्ट्री जस्ट जी मैम। अनीता जी एक चीज जो असम के बारे में जानते नहीं हैं, जरा सा होत्रा क्या होते हैं इसके बारे में भी बता दीजिए। होत्रिया एक्चुअली सत्रिया नहीं है, होत्रिया। मैं पूछना चाह रहा था कि ये जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है होत्रा, वो होत्रा क्या होते हैं? होत्रा है, होत्रा इन द 15th century Mahapuru Srimanta Honkordev Gurujana founded this Hotra. It's like a monastery, Vaishnava monastery. तो वहाँ पे एक होत्राधिकार होता है, जो इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसको हम लोग बोलते हैं होत्राधिकार. Just like he is a principal of the Hotra, that particular Hotra. So उसके साथ में भौकत जैसे डिसाइपल्स है, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं एक स्कूल में, तो वहाँ पे भौकत, उन लोगों को भौकत बोलते हैं. तो उन लोग सुबह से लेके रात तक, शाम तक, जैसे एक वे ऑफ लाइफ, उन लोगों का जीवन का एक निर्धारित जो रीति नीति है उसके जरिए उन लोग आगे बढ़ते हैं. तो वो लोग होत्रा में, जब वो लोग छोटे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को उसका पेरेंट्स होत्रा में जाके उन लोगों को दे के आते हैं. तो होत्रा से उन लोगों का पढ़ाई, स्कूल, कॉलेजेस, कोई अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन होत्रा उसका घर है. और जैसे है एक होत्रा में इट्स बहुत बड़ा एरिया एक है होत्रा में, तो उसमें होत्राधिकार का एक रूम होता है, जैसे वहाँ का बोहा बोलते हैं, डिफरेंट बोहा. तो एक एक बोहा में अगर 2-4 भौकत रहेंगे, छोटा छोटा लड़का, लड़की अलाउड नहीं है, तो वो लड़का का एक एक पिता समान उन लोगों का एक गार्जियन रहता है. एक एक बोहा, उसको बोलते हैं बोहा. तो उस हिसाब से उन लोग छोटे से टाइम पे कोई मतलब खोल, जैसे वाद्य है, वाद्य गायन है, नृत्य है, उन लोग सीखते हैं. और जो जिसमें पारगत होंगे, अगर कोई इसको देखेंगे वो नृत्य में पारगत है, तो उसको जो उन लोगों का टीचर है, बोहा का जो टीचर है, तो वो विषय में उसको
डांस एज ए डांसर तैयार करेंगे। अगर कोई खोल वाद्य में पारंगत है तो उसको एज ए बायन बोलते हैं। तो बड़ा होके जाके जैसे उन लोगों को उपाधि देते हैं, जैसे टाइटल सब सीखने के बाद अगर वो लोग बायन है तो उन लोगों को बोलते हैं बर बायन। इट्स लाइक ए उपाधि, मींस टाइटल। हाँ, कोई नृत्य में ऐसे उपाधि, जैसे वो लोग सब सीखेंगे उसके बाद वो लोग आके बाहर में, आजकल बाहर में सिखाते हैं। लेकिन इन द ईयर 1957 में जैसे उत्तर कमलाबाड़ी हट्ट माजुली में जो है हट्ट, उसमें से वहाँ उस टाइम का जो भक्त है, मेरा पहला गुरु रसेसर सैकिया बरबायन, लेट रसेसर सैकिया बरबायन, हु वाज एन संगीत नाटक अकादमी अवार्डी। वो पहले हट्ट से बाहर निकाल आके लड़की को डांस सिखाना शुरू किया था। तो उससे पहले लड़की डांस नहीं सीखते थे। And his first female disciple was Putuli Hajorika, and she is from Bhekula Gaon. The village is called Bhekuli Gaon near Uttar Kamalabari Hatra. जैसे हम लोग अभी डांस करते हैं एज ए परफॉर्मर, हट्टिया डांस जो है कमलाबाड़ी हट्ट का जो है, हम लोगों का अलग अलग सत्र है, आउनियाटी हट्ट, दक्षिण पाट हट्ट, कमलाबाड़ी हट्ट। वहां से डांस का ट्रेडिशन ज्यादा है, वहां पे डांस ज्यादा है। तो वो आके रघुसर हयकिया मेरा गुरु आके उसको जब सिखाया तो उसको हट्ट से बाहर जाने के लिए बोला उस टाइम, क्योंकि वो लड़की को सिखाया था। तो फिर लेकिन उससे एक मेरा ख्याल से उस टाइम से एक जैसे हम लोग बोलते हैं जागरण, नव जागरण शुरू हुआ है कि ये आर्ट फॉर्म बाहर आके लड़की लोग सीखने शुरू किया। उसका बाद उसने जाके तीनसुकिया बोल के एक जगह है, एक प्लेस है अपार असम में, वहाँ पे जाके रसेसर सैकिया बरबायन ने वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया, तो वहाँ पे उसने सिखाना शुरू किया। तो उस टाइम वो इंस्टीट्यूशन में मेरा गुरु पद्मश्री ज्योतिन गोस्वामी सर भी उसका साथ सीखने लगा। तो उस हिसाब से उसके बाद गुवाहाटी में आया रसेसर हयकिया बरबायन। जब गुवाहाटी में आया वहाँ पे जब पायोनियर जो इंस्टीट्यूशन है संगीत हट्ट, and he founded that Sangit Hatra with the help of late Maheshwar Neu, who is a intellectual for Hattriya dance। उसने सत्रिया डांस में थियोरिटिकली उसके साथ बहुत काम किया। तो उसका हेल्प लेके वो संगीत हट्ट गुवाहाटी में स्थापन किया था। उसके बाद धीरे धीरे जितना भी फीमेल डांसर्स है धीरे धीरे सब सीखने लगा। तो उसके बाद मेरा गुरु श्रीमती गरिमा हजरिका, इंदिरा पुपी बोरा, देन पुष्पा भूया, देन हारोडी हयकिया और बहुत सारे लड़के भी है। जैसे एज ए परफॉर्मिंग आर्ट, इट्स अ रिवॉल्यूशन स्टार्टेड एज ए परफॉर्मिंग आर्ट, उसको कैसे मंच पे ले जा सके। उसके बाद धीरे 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 ये आर्ट फॉर्म फैलने लगा। लेकिन 67 आई थिंक 67 में फिर बहुत एक ये हुआ था कि एज ए मेजर क्लासिकल मेजर डांस फॉर्म उसको रिकॉग्नाइज मिले, लेकिन कुछ कारण से हो सकता है, कुछ एक होते हैं ना, कुछ कारण से भी उसको मिला नहीं, सत्रिया को एज ए मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म मिला नहीं था। तो उसके बाद बहुत सारा फाइट किया, लेकिन इट्स अ रिच ट्रेडिशन है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 600 years ओल्ड, एक बहुत पुराना ट्रेडिशन। तब भी बहुत फाइट करने पड़ा, क्योंकि उसका बाद इन द ईयर 2015 नवंबर में संगीत नाटक अकादमी ने एज ए मेजर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया। उसकी बाद से और थोड़ा रिवोल्यूशनरी और ज्यादा हो गया शुरू की। इतना सुंदर एक आर्ट फॉर्म को कितना कैसे हम लोग प्रोशनियम स्टेज में कैसे ले जाए, इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन, ये भी याद रखना है हर टाइम। उसको कैसे इतना है, हम लोगों का ग्रामर इतना है,
फुटवर्क्स इतना ज्यादा है, हैंड जेस्चर्स इतना ज्यादा है, साहित्य इतना है, तो गीत है, वाद्य है, सबको इतना दिन से जो चल रहा था सत्र में एज ए भक्ति, एज ए प्रेयर टू गॉड, तो वो तो they are the bhaktas are doing their prayer, but in proscenium stage how हम लोग कैसे उसको बांधे एक सिलेबस में, तो वो काम बहुत जोर से शुरू होने लगा with the help of performer, with the help of the theoretical person जो काम करते हैं, scholars and gurus, performers and scholars मिलके वो आर्ट फॉर्म को आई थिंक फ्रॉम 2000 उसका जो दौर है, जो रन है उसका बहुत ज्यादा आगे जा चुका है, और by the grace of God the audiences, the recipients, the art critics, they all are helping to grow this art form, and of course the Speak Bhakti is helping like anything. जी मैम, बिल्कुल, बहुत बहुत मतलब this is really nice that everyone is coming forward and helping this art form. So ma'am, like you mentioned, I heard ki it was initially not advised, it was not performed by the females. Yes. Hattriya is not practiced by females earlier. Yes, so yes. I would like to know a little bit how it all started, what were the challenges that were faced by the females, and what has been how much evolvement and help which the female category has given to this art form. महिलाओं ने कितना ज्यादा योगदान दे पाए हैं? अभी तो आप लोग बोल सकते हो दिस इज अ फीमेल ओरिएंटेड डांस, क्योंकि फीमेल डांसर ज्यादा है। जैसे भी हिस्ट्री बोलते हैं कि इट्स ए मेल ओरिएंटेड, मेल ने किया था, क्योंकि उस टाइम पे ऐसे भी आप देखा जाए भारत की, नॉट ओनली सत्रिया, नॉट ओनली हॉट्रिया, भारत में जितनी भी परंपरा है डांस की, तो पहले तो पुरुष प्रधान थे ज्यादा, क्योंकि महिला आगे नहीं आया था डांस करने के लिए। डांस हो या एक्टिंग हो या पिक्चर अभिनय हो, जो भी हो, ये आर्ट फॉर्म में, क्योंकि हम लोग का जो सोशल समाज व्यवस्था जैसे हम लोग बोलते हैं वो अलग था। तो उस टाइम ये भी एक बात है कि कोई अगर आगे आना भी चाहते हैं, एक सामाजिक जो वातावरण थे उसके हिसाब से आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन उस टाइम हॉट्रो में क्या है, हॉट्रो में ओनली मेल आर अलाउड टू गो। अभी भी हम लोग अगर हॉट्रो में जाते हैं, सीखते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग रह नहीं सकते हैं। जो बहा है उसमें ओनली द मेल, भॉकट, उन लोगों को बोलते हैं भॉकट। तो उस हिसाब से लड़के लोग सीखना चाहते हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, अलाउड नहीं था। तो मैं इसीलिए अभी तो बोली थी कि मैं 1957 में तो रखेश्वर शइकिया बरबायन ने वो वहां से आके वो उससे आके सत्य से बाहर निकाल के आके वो लड़की को सिखाना शुरू किया। जैसे मैंने बोला उसका फर्स्ट डिसाइपल पुटुली हाजोरिका और भेकुली गांव। तो उसकी बात क्योंकि सबका तो मन में इच्छा था सीखने का, तो वो मौका जैसे रखेश्वर शइकिया बरबायन सर को हम एक्चुअली ऑल डांसर्स शुड ऑलवेज रिमेम्बर हिम फॉर दिस रिवोल्यूशन, क्योंकि वो अगर वो साहस नहीं करते थे, वो जो जागरण है वो अगर शुरू नहीं करते थे, तो शायद अभी इतना जितना हम लोग फीमेल डांसर्स कर रहे हैं वो नहीं हो पाते। तो जब गुवाहाटी में आ गया, गुवाहाटी इज द मेन सेंटर ऑफ असम, मेन सिटी ऑफ असम, तो गुवाहाटी पे आके जैसे उसने स्थापन किया संगीत हॉट्रो इंस्टीट्यूशन खोलने से क्या होता है, लोगों का आकर्षित होता है लोग कि ये इंस्टीट्यूशन में हम लोग एडमिशन ले सकते हैं फॉर ट्रेनिंग। अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो कहाँ सीखेंगे? तो जैसे अभिभावक है, जैसे गार्जियंस है, तो उन लोगों को पता चल गया कि ये इंस्टीट्यूशंस है, तो वी कैन सेंड आवर डॉटर्स सन टू लर्न हॉट्रिया डांस इन संगीत हॉट्रो। तो वो उससे शुरू हुआ एक्चुअली, और गुवाहाटी जब आया तो वहां से ज्यादा शुरू हो गया कि कितना
ये कर सके। और उस टाइम और कुछ कुछ गवर्नमेंट डिविजन्स थे, जैसे सॉन्ग्स एंड ड्रामा, डायरेक्टर ऑफ कल्चरल अफेयर्स, तो उन लोगों ने भी तब जो कोई कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम में संगीत हॉट्रो से हॉट्रिया डांस की परफॉर्मेंस इनवाइट किया करने के लिए। तो ऐसे करते 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 आगे धीरे 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 आगे आया। फिर सत्रिया डांस को फीमेल लोग, अभी तो बोल सकते हैं कि इट्स फीमेल ज्यादा है, हाँ है, फीमेल मेल डांसर्स भी है, बट परसेंटेज इज वेरी लेस, very less, 5% males. That I'm not talking about that Hokots. They are not as a performing artist. 5% male performer and बाकी 95% definitely female. So लेकिन एक बात सही है कि फीमेल डांसर्स जो डांस करते हैं मंच पे, तो ये डांस जल्दी पहले वाले पॉपुलर हो जाते हैं कि कॉस्ट्यूम से लेके हम लोग का जो वेशभूषा है, जैसे अंगिक है, तो जैसे हम लोग शुरू पहले सत्र में क्या था, एक जो उन लोगों का कॉस्ट्यूम वो लोग सिल्क नहीं यूज करते थे, एक सटिन जो क्लॉथ्स होते थे वो काट के ऐसे बॉर्डर लगा के वो लोग करते हैं। लेकिन बाद में हम लोग जैसे जैसे टाइम आगे आ गया, तब हम लोगों का जो असम का सिल्क है, मूगा है, जो टेक्सटाइल है, हम लोगों का टेक्सटाइल है, उसको काट के जैसे डांस कॉस्ट्यूम स्टिच हो गया। उसमें गरिमा हजोरिका मैम का बहुत कंट्रीब्यूशन है फॉर दिस कॉस्ट्यूम। उसके बाद जैसे ऑर्नामेंट्स हम लोग यूज करते हैं, टिपिकल असमीज ऑर्नामेंट्स है, ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स। तो वहां से लोग अट्रैक्ट कैसे होते हैं, पहले तो अट्रैक्ट होते हैं आहज्य से, आहज्य जो हम वेशभूषा जैसे करते हैं, जैसे हम मंच पे आते हैं तो वो जैसे डिसिप्लिन तरीके से हम लोग खुद को प्रेजेंट करने लगा। धीरे धीरे जितना भी म्यूजिक जैसे है, हिंदुस्तानी है, कर्नाटकी दो हम लोग जैसे जानते हैं कि इंडिया में है, तो हम लोगों का जो ट्रेडिशन है म्यूजिक का वो भी बहुत विशाल है। एक्चुअली शंकरदेव की बाद उसकी प्राइम डिसाइपल महापुरुष माधव देव ने भी इतना उसको कला को आगे ले गया, साहित्य इतना है, तो वो साहित्य भी भरपूर है, तो हम लोग इतना कर ही नहीं पाएंगे एक जन्म में। तो ऐसे शुरू हुआ काम। जैसे म्यूजिक कंपोजर जो यहाँ का स्टॉलवर्ड म्यूजिक कंपोजर से संगीत नाटक अकादमी अवार्डी प्रभात शर्मा, देन लेट मुरारी मोहन शर्मा, लेट केशवानंद देव गोस्वामी, लेट जगन्नाथ महंत, ऑल एक्चुअली इट्स अ टीम वर्क। सब मिलके कैसे ये डांस फॉर्म को आगे ले जा सकते हैं, सब शुरू हो गया था। तो उस तरीके से धीरे धीरे एंड आई फील सो हैप्पी nowadays in this present time, the young dancers, the students, उन लोग जहाँ पे भी है, कोई दिल्ली में पढ़ रही है, कोई कोलकाता, बेंगलोर, अमेरिका, लंदन, जहाँ पे भी है, बट ये बात देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि दे आर टेकिंग दिस डांस फॉर्म सो सिंसियरली, सो सीरियसली। इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर दिस वंडरफुल ट्रेडिशन, क्योंकि हम लोग तो नेक्स्ट जेनरेशन लेना ही होगा एक ट्रेडिशन को आगे ले जाने के लिए। सो आई फील सो हैप्पी टू सी द यंग जनरेशंस टू टेक इट सो सिंसियरली, सो सीरियसली। तो उस हिसाब से वो धीरे धीरे जैसे आप पूछा था मेरे को, उस हिसाब से फीमेल डांसर्स अभी भी तो आप लोगों का जो है वो चल रहा है वहाँ पे अन्वेषा क्लास सब ले। Annesha is a very hardworking, very talented dancer. So I loved her. So अभी भी तो female dancer ही workshop ले रहे हैं। बिल्कुल। So I'm so happy to see her also. ये अच्छा फील हो रहा है कि जो मेल बेशन था एक टाइप पे,
उनका मोनोपोली थी, आपने वो मोनोपोली खत्म कर दी और माइनॉरिटी में कर दिया उन लोगों को। हम लोगों का जो सीनियर्स है, हम लोगों का जो सीनियर, जैसे मैंने बोला गरिमा हजोरिका, पुष्पा पुया, लेट पुष्पा पुया, इंदिरा पिंकी बोरा, हारोटी खॉइकिया, दीपाली दास पुया, उन लोगों को देख देख के हम लोग भी एक प्रेरणा मिलते है। तो कैसे किया है वो सीनियर्स को देख के, क्योंकि एक परंपरा है, तो उन लोगों को देख के हम लोग सीखा, तो हम लोगों को देख के ऐसे चेन आगे बढ़ना चाहिए। जो ट्रेड है वो टूटना नहीं चाहिए एक्चुअली। सो उस हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल डांसर्स नहीं है। मेल डांसर जो भी कर रहे हैं मेल डांसर्स, दे आर ऑल्सो, मतलब 5% है, लेकिन दे आर डूइंग सो वेल एज ए परफॉर्मर ऑल्सो। जो भी कर रहे हैं टीम, मतलब 5% दे आर, लेकिन वेरी सिंसियर, अच्छा से कर रहे हैं विद द बोथ साइड, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एंड दैट कंटेम्पोरेरी थीम, कुछ जो होना चाहिए। एग्जामिनेशन होता है ना, परीक्षा, परीक्षा, सब लोग, लेकिन जो 5% मेल डांसर्स है वो लोग भी बहुत ही अच्छा काम करे, वो भी अच्छा लगता है। कभी कभी हम लोग एक साथ भी करते हैं, वो भी अच्छा लगते हैं कभी। और आजकल क्या है, जो भक्कत है सत्र में, तो वहां से भी 2% या 3% वो भी परफॉर्म करते हैं बाहर आके परफॉर्मर। जैसे हम एक का नाम ले सकते हैं, मेरा अभी याद आया, भवानंद बरबयन, ही स्टेज इन दिल्ली। तो वो अभी भी भक्कट है, लेकिन he used to perform also, and he used to teach also, and he used to go to Paris, Germany to teach this Hattriya art form. तो वो लोग भी अभी एज ए परफॉर्मर वो लोग भी आ रहे हैं, बाहर आके करते हैं मंच पे। तो एक आर्ट फॉर्म तो सब मिलके आगे ले जाना है। तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग हैपनिंग इन आसाम। जी मैम, तो I would like to ask you one more important thing regarding Yes. Hattriya and Assam. See, so anyone who says when I am from Assam or something, instantly there comes in mind of Bihu dance or maybe tea or rhinos or something like that. So I would really want to know why and where it is lacking that Hattriya has not been able to easily connect with the people as easily they are connected to Bihu or something like that. Where is the difference? I think it's not about the connecting. Bihu is a folk dance. Yes. And folk dance is for folk dance करते हैं हम लोग जब हम लोग का आनंद होता है, तो वहाँ पे ग्रामर नहीं होते हैं, तो खेत होते हैं ना, खेत से एक जो कम्युनिटी है, उन लोगों का जो फेस्टिवल से हार्वेस्ट फेस्टिवल, हाँ, तो वहां से लोक नृत्य की कुछ बांध नहीं है कि कुछ एक परिसीमा नहीं है, तो वो लोग फुर्ती से करते हैं, तो वो तो डेफिनेटली पॉपुलर होंगे। जैसे आप लोग सोचिए कि पंजाब की भंगड़ा हो या बंगाल का भी है, उड़ीसा की संबलपुरी, जैसे जो भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, वो अभी एक स्टेट का बारे में हम लोग अगर पढ़ते हैं, पहले हम लोग स्टूडेंट जब थे सोशल स्टडीज में, तो उसके बारे में लिखा कितना सालों से चल रहा है, किसी को पता नहीं है ये लोक नृत्य। तो इसीलिए बिहू सबको पता है, लेकिन क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य इज फॉर क्लासिक पीपल। तो क्लासिक पीपल के लिए जब होंगे, तो एक हम लोग शास्त्रीय डांस का डेफिनेटली लोक नृत्य की प्रभाव तो है, सत्रिया में भी है। जैसे मैंने किया था एक रिसर्च वर्क, तो बिहू का कुछ हैंड जेस्चर्स, बोरो कम्युनिटी का फुट वर्क्स या हैंड जेस्चर्स, जैसे हम लोगों का सत्रिया में जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उला जो है स्प्रिंग, हम लोगों का पाँव जब हम लोग जमीन पे, जब हम अगर ठीक हो जाए तो करके दिखाती, तो वो उला यू ओनली सी इन हॉट्रिया डांस। एंड दैट उला असम की नहीं, नॉर्थ ईस्ट की जितने भी डांसेस है, फोक डांसेस है, वहां पे आप देख पाएंगे वो उला। तो बिहू का एक हम लोग ऐसे डांस करते हैं बिहू, वो उसका वहां से शायद आया सोटा, हॉट्रिया में सोटा। जब
माटी अखड़ा का सटा, इट्स ए हॉस्टा, हम लोग बोलते हैं सता। तो ऐसे बोरो कम्युनिटी का क्या है, जैसे हम लोग पहले जब हम लोग आते एंट्री करते हैं, प्रणाम करते हैं जिन था, तो राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। तो वो जो है बोरो कम्युनिटी में एक डांस है बर्थडे सिकला, तो वहां पे भी वो लोग ऐसे करके मतलब लेफ्ट एंड राइट करके वो लोग डांस करते हैं। तो वो लोग माना जाते हैं कि क्योंकि लोक नृत्य है कितने सालों से आ रहे हैं, तो वहां से डेफिनेटली अपना अपना रीजन का शास्त्रीय नृत्य में कुछ ना कुछ प्रभाव होंगे। तो ऐसा नहीं है कि बाहर में, आसाम की बाहर में डेफिनेटली हम लोग जहाँ जाए तो बिहू को सब जानते हैं, लेकिन सत्या ट्रेडिशन, सत्या के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अभी लेटर पार्ट ऑफ 2000 अभी मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे जैसे बाकी क्लासिकल डांसेस है, सत्रिया हो, कथक हो, मोहिनीअट्टम हो, वो जैसे अभी सत्रिया लेकिन लोग जानने लगा है, पूछते हैं। एक्चुअली पहले सब लोग मानते थे कि नॉर्थ ईस्ट का क्लासिकल फॉर्म है मणिपुरी, लेकिन आजकल नॉर्थ ईस्ट का दो हो गया, एक हॉट्रिया, एक मणिपुरी क्लासिकल फॉर्म। तो अभी धीरे धीरे जानने लगा है। अभी तो मेरा ख्याल से सब लोग ही जान, लेकिन लोक नृत्य तो ऐसा ही है कि वो हार्वेस्ट फेस्टिवल से जुड़ा हुआ होता है, तो सबको थोड़ा बहुत ज्यादा जानेंगे। दिस इज ऑब्वियस, राइट मैम, वेरी ट्रू। तो मैम अब मैं आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि हॉट्रिया नृत्य में जो एलिमेंट्स है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है और डिफरेंट फॉर्म्स है, जैसे गायन, वायन और ड्रामा आपने बताया, तो उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा एक बार बताएं। और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, हम प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स है खोल। जैसे उड़ीसी में पखवाज बजते हैं, कथक में तबला, भरतनाट्यम में मृदंगम, जैसे उड़ीसी में होता है खोल। ढोल की तरह, ढोल थोड़ा बड़ा होता है, ढोल का साउंड अलग होता है, खोल का अलग होता है, खोल का साउंड प्रोडक्शन अलग होता है। तो हम लोगों का जो ताल पैटर्न है, पर्टिकुलर ताल पैटर्न है, एंड जो संगीत है, संगीत का पर्टिकुलर राग है, राग लेकिन नाम हिंदुस्तानी के साथ एक होता है, राग भोपाली है, भैरवी है, इमन है, जैसे है रूपगंज, लेकिन ब्याह गोरा कोई ट्रेडिशनल राग है, लेकिन हम लोगों का ताल रूपक ताल है, एक ताल है, लेकिन पैटर्न अलग अलग है हिंदुस्तानी के साथ, मतलब मात्रा का जो डिफरेंस है। एक ताल जैसे, हाँ, मतलब हम अभी बजा के नहीं दिखा सकते, मेरे हाथ थोड़ा इसीलिए। और एक बात है कि हम लोगों का यहाँ पे एक ट्रेडिशन है, इट्स अ वेरी रिच ट्रेडिशन, इट्स अ प्री शंकरदेव मोमेंट, ओजापाली ट्रेडिशन। ओजापाली क्या नहीं है, गायन है, नृत्य है, अभिनय है, हैंड जेस्चर्स है, फुटवर्क्स है। तो वहां पे एक उजा इज अ सेंटर कैरेक्टर फॉर उजापाली, एंड पीछे जितना भी लोग खड़ा रहेंगे उसको बोलते हैं पाली। तो उजा, जो मेन उजा, जो सेंटर कैरेक्टर, वो अपनी गायन के जरिए एक कहानी, एक जो स्टोरी को आगे बढ़ाता है। वो जो पाली है उसको वो लोग दुहारते हैं, वो लोग उसके साथ देते हैं। मतलब जैसे मैंने किया था उजापाली की आरही लेके एक कंपोजिशंस, लीला गोविंदम। ओके, तो एक जो बीच का जो है डांसर, वो स्टोरी को बताते जाएंगे कि अभी कृष्ण को अभी पुतना राक्षसी ने मारेंगे, वो बोल के गया। फिर पीछे से दो लड़कियां के वो स्टोरी वो लोग थ्रू अभिनय दिखाएंगे। फिर वो लोग पीछे आएंगे, फिर बोलेंगे अभी ऐसे है कि कृष्ण मिट्टी को खा लिया, अभी उसका मुंह में क्या होगा आप देखिए। तो फिर दो डांसर आके देखेंगे। तो उजापाली इट्स लाइक ए वेरी रिच ट्रेडिशन। तो उजापाली का जो संगीत है वहां से भी
सत्रिया परफॉर्मेंस के लिए एज ए परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे हम लोग अभी बनाते हैं, कंपोजिशंस करते हैं, तो उजापाली से भी राग हम लोग लेते हैं। एंड हैंड जेस्चर्स क्या है, हम लोगों का जो प्राइम बुक है श्री हस्त मुक्तावली शुभंकर की लिखी हुई, तो नाट्य शास्त्र तो है, वो तो इट्स मदर ऑफ ऑल क्लासिकल आर्ट फॉर्म, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। लेकिन सत्रिया में जो है श्री हस्त मुक्तावली, वहां से हम लोग लेते हैं हैंड जेस्चर्स, एंड उजापाली से लेते हैं। उजापाली में बहुत सारे हैंड जेस्चर्स वी कैन यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द अभिनय, बहुत सारे हैं। तो उस हिसाब से अभी जैसे जब से क्लासिकल डांस फॉर्म एज ए मेजर क्लासिकल डांस फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड हुआ है, उसके बाद कॉम्पोजिशंस करने के टाइम आप एक ये मैंने ऐसे किया कि एक श्लोक है नंदी श्लोक, अगर मैं करने जाऊं उसको, तो मेरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ऐसे परफॉर्मर सबका एक ड्रीम, एक अपना अपना एक वर्ल्ड होते हैं, तो मेरा इंटरप्रिटेशन से वो श्लोक हम देते हैं मेरा म्यूजिक कंपोजर को कि आप ये राग में मेरे को ये कंपोजिशन चाहिए। तो लेकिन वो राग डेफिनेटली सत्रिया ट्रेडिशन की होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ग्रामर तो होना ही पड़ेगा। तो हमको ये ताल चाहिए, रूपक ताल चाहिए, उसमें आप वो राग में आप बांध लीजिए। तो ऐसे ऐसे करके वो लोग बांधते हैं। जैसे एक है मेरा अंकिया नाट की एक नंदी श्लोक, यत्पाद पंकज रजः, जैसे सत्र में तो ऐसे गाते हैं, मतलब जैसे वर्शिप टू गॉड, यत्पाद पंकज रजः शिरसा सुरेसा, ऐसे करके वो लोग फॉर द वर्शिप ऑफ गॉड वो लोग करते हैं। लेकिन मैंने जब किया था परफॉर्मेंस फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट, तो उसको एक ताल में बांध लिया। ताल में बांधने से क्या होता है, हम लोग का यत पाद पंकज यत पाद पंकज राजा शिरसा सुरेसा शर्बदायु देवेश दोते मुद दुदहन्ति यत् कीर्तनात् कलिमालं मनुजास्ते जानते। ये जो है राग ब्याहगरा, हाँ, उसमें हम लोग ये बांध लिया। लेकिन ये जो श्लोक है, लेकिन जब भक्त लोग ऐसे वर्शिप वो लोग गाते हैं, उन लोगों का कुछ एक बांध नहीं लेते हैं वो लोग, एक राग है, लेकिन फॉर द तो ऐसे ऐसे करके जब उसको परफॉर्मिंग आर्ट के लिए हम लोग करते हैं, तो सब सोचना पड़ता है क्योंकि टाइम, वो लोग तो सुबह से लेके शाम तक गाते रहते हैं सत्र में। लेकिन जैसे हम लोग को परफॉर्मेंस के लिए बुलाएंगे, तो आप लोग जैसे बोल रहे आज 1 घंटा के लिए, तो 1 घंटा, कभी 10 मिनट्स, कभी 15 मिनट्स, कभी 45 मिनट्स। तो और जैसे हम लोग को टाइम दिया जाता है, उस हिसाब से हमको बांधना पड़ेगा। वो बांधने के टाइम क्या क्या होगा, कैसे कैसे हम लोग वो टाइम में, हम लोग का जो इतना रिच ट्रेडिशन, हाउ can we show to the audiences, रसिकर्स, आर्ट लवर्स, डांस क्रिटिक, ये बात मैं सब समय मन में रखती हूँ कि इट्स अ वेरी न्यू फॉर्म। अभी भी कैसे हम लोगों का जो सुंदरता है, जो सत्रिया का जो सुंदरता है, उसको, उसका ग्रामर को इंटेक्ट, एकदम इंटेक्ट रख के उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए, ग्लैमर के साथ, साहित्य के साथ, म्यूजिक के साथ, परफेक्शन के साथ कैसे प्रेजेंट किया जाए, सब हम लोगों को सोचना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन, वी कैन नॉट क्रॉस द लाइन। तो इस हिसाब से संगीत को लेके, ताल को लेके, साहित्य को लेके
सब मिला के सोचना पड़ता है, बहुत बातचीत करना पड़ता है, म्यूजिक कंपोजर्स के साथ बैठना पड़ता है, गुरुओं के साथ, क्योंकि गुरु बिना तो होता नहीं है। जी तो मैम। अभी भी हम लोग, मेरा ख्याल से आसाम की सत्रिया ऑल डांसर्स वी आर सो लकी बिकॉज इट्स अ लिविंग ट्रेडिशन। वी कैन, अभी हम लोग का कोई भी क्वेश्चंस मन में है तो we can go directly to Hotro and we can discuss all those things with the Bhokot, with the Bura Bhokot, with the Hotradhikar, together our knowledge. So we are, उस हिसाब से हम लोग बहुत लकी है कि अभी we can go to immediate, we can go to Majuli, Borpeta, anywhere. So उस हिसाब से proscenium stage के लिए संगीत को, क्योंकि संगीत is a main, I think it's a main very prime है डांस के लिए, क्योंकि दृष्टि और कान दोनों को सूदिंग होना चाहिए। एक मुझे अच्छा लगता है कि एज ए परफॉर्मर में जहाँ भी जाती हूँ, वो जो हम लोग का म्यूजिक है उसको ऑडियंस बहुत अच्छे से लेते हैं। और एक आप बात बोल रहे थे कि क्या इंस्ट्रूमेंट, खोल इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ लेडर, बिकॉज खोल बोल बाने के लिए खोल, देन वोकल बॉर्गीत जो गाते हैं, लेकिन बॉर्गीत का एक गायन शैली है, उसको सीखना पड़ता है। अच्छा, इट्स अ शैली, इट्स एक ये है डिफरेंट स्टाइल, उसका राग है, उसका गायन शैली अलग है। जी मैम। उसको सीखना चाहिए, जो गायक गाएंगे उसको, लेकिन बॉर्गीत सीखना पड़ेगा, वो ट्रेडिशन को ऐसे आके गा नहीं सके, उसका एक फेवर है डिफरेंट टाइप। देन एक्चुअली बांसुरी, फ्लूट लेते हैं हम लोग, यूज करते हैं। एक्चुअली वायलिन इज ए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली वायलिन इज ए वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट, लेकिन अभी तो ऐसे सब ट्रेडिशन ही यूज करते हैं, बाकी सब शास्त्रीय नृत्य, क्योंकि अभी लेकिन वायलिन हम लोग यूज करते हैं कि, लेकिन ये जो भी सर होगा, जब भी सरगम होगा, लेकिन वो बंधा रहेंगे, बॉर्गीत का जो राग में बांध लेते हैं। पहले और एक इंस्ट्रूमेंट था, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, और ये भी, वो भी बजाते थे पहले, लेकिन अभी वो बजाने वाला भी कम हो गया है, इसीलिए वायलिन, फ्लूट एंड द ताल, सिंबल एंड वोकल एंड द खोल, दिस रिजनेबली हम लोग लेते हैं। लेकिन कभी कभी आजकल क्या होता है, जैसे हम लोग जाते हैं विद द म्यूजिशियंस, तो कभी कम लेना चाहिए, 5-6 म्यूजिशियंस लेने से मुश्किल होने से वी प्रीफर ऑलवेज फ्लूट। फ्लूट को प्रीफर करते हैं ज्यादा वायलिन से, क्योंकि हम लोग का ये फॉर्म है वैष्णवाइट ट्रेडिशन का। वी ऑलवेज डिपिक्ट द कृष्णा, अभिनय हो या जो भी हो, इट्स अ वैष्णवाइट ट्रेडिशन, कृष्णा oriented to flute is very comfortable. If we have to choose flute or violin, I always choose flute for my performance. Okay, ma'am, so beautifully explained all the elements and beautifully sang. I would like to make aware all the people with us today कि मैम has recently met with a small accident, जिनके वजह से उनके लेफ्ट हैंड पे चोट आई है, नहीं तो फ्रैक्चर हो गया है। मैं तो थोड़ा बहुत करके दिखाती हूँ इसे, बिल्कुल चेतन, मैं ये इस सस्पेंस रखना चाह रहा था, मैं इसको बाद में बताता। अरे तिवारी जी, मैंने आपके अरमानों पे पानी फेर दिया मैंने। देखिए, किसी को पता नहीं लग रहा कि आप इतनी तकलीफ होगी, पेन में होगी, तो इस तरह से करी, तो बाद में मैं बताता सस्पेंस के तौर पे। एनीवेज, but anyway, ma'am is beautifully explaining things and I'm very we are very unfortunate, नहीं तो मैम अभी थोड़ा बहुत मुद्रा करके भी दिखा पाती, but anyway she is explaining beautifully. मैम आरो একটা প্রশ্ন আছিল। জি ম্যাম, আরো একটা প্রশ্ন আছিল। So like you mentioned guru and all, so guru shishya parampara in this living tradition is also very important, I believe. So I would want you to throw some light on this particular guru shishya parampara. हाँ, ये बात तो बहुत ही जरूरी है अभी के जमाने में। गुरु शिष्य परंपरा तो अभी बोल नहीं सकते कि है, डेफिनेटली नहीं है,
नहीं है, मतलब गुरु के पास गया 2 आवर्स हम लोग क्लास किया, ये इट्स नॉट ए गुरु शिष्य परंपरा। पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, फर्स्ट थिंग आई पर्सनली फील टीचर एंड गुरु के बीच में एक लाइन है। ओके। आजकल क्या है, कोई सीख के सिखाना शुरू कर देते हैं तो गुरु नाम ले लेते हैं, लेकिन अच्छा। गुरु नाम लेने के लिए बहुत मैं डरती हूँ। मेरे अभी भी आप लोग बोल रहे हैं कि बट आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ टेकिंग द नेम ऑफ गुरु। मेरा नाम से पहले गुरु लगाना अभी भी मैं आई एम स्केयर्ड, क्योंकि गुरु एक गुरु, हाँ गुरु इज ए नॉट ओनली आपको डांस नहीं सिखाते, वो सिखाते आपका जीवन की जो एक लाइफ वे ऑफ लाइफ, आपका वैल्यूज ऑफ लाइफ, एक दर्शन होते हैं, एक दर्शन को सीखना चाहिए। गुरु के साथ आपका मानसिक एक संबंध होना चाहिए, मेंटल कनेक्शन होना चाहिए, बिकॉज ये जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म है, डांस हो या म्यूजिक हो, हम लोग बोलते हैं कि वो डांस या म्यूजिक से लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, बोलते हैं। तो पहले का जमाने में हम लोग सुनते थे कि तानसेन जब गाते तो बारिश आते थे, तो हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके कारण से वो गुरु के साथ जो है मानसिकता जो है, मानसिक जो एक मेंटल कनेक्शन, मतलब आजकल क्या हो गया, सैटरडे संडे क्लासेस है जो 10 to 11 1 आवर क्लास। मैम कितना देर क्लास होगा, मेरा 11 बजे ट्यूशन है, तो ठीक है, वो भी है, क्योंकि अभी का तो जमाना अलग है, वो लोग पढ़ना सब ठीक है, लेकिन अगर 2 घंटा भी क्लास करे वो भी ठीक है। लेकिन घर में जाके भी, जैसे हम लोग देखते थे एकलव्य ने गुरु बिना ही सीख लिया था धनुर्धर सीख लिया। गुरु को मन में रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि गुरु के पास रहना चाहिए। तो अगर हम मेरा गुरु है जतिन गोस्वामी सर के साथ मैं अगर नहीं भी रहते अभी, तो अगर मैं नहीं भी जाते, लेकिन सर मेरे साथ 24 आवर्स रहते हैं। मेरा साथ रहते हैं, मतलब क्या, मेरा मन में, मेरा मतलब साथ में, क्योंकि वो जो है एक संबंध नहीं होने से वो आर्ट फॉर्म आप समझेंगे नहीं। क्या बात है। It's a journey. Dance is a journey. It's a very tough journey. ऐसा मेरा ख्याल से डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़ाई जो भी हो उससे, लेकिन ये म्यूजिक का जो जर्नी है, इट्स वेरी टफ, वेरी, आपको बहुत पेशेंस चाहिए उसको। वो ओनली बुक पढ़ने से नहीं होगा। ये जो ग्रामर पढ़ के लिख देते हैं थ्योरी, वो तो है लिख दिया, लेकिन वो व्हाट इज, अभी भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कृष्ण हस्ता से लूंगी, लेना है मेरे को, करना है, तब भी मैं बार बार सोचती हूँ कि मैं हो पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मैं कृष्ण को दिखाने जाने के लिए, लॉर्ड कृष्ण को अगर मैं डिपिक्ट करूंगी मैं खुद उसको, मतलब अभी भी मेरा डर लगता है कि इट्स हैपनिंग और नॉट। तो गुरुजी के पास जाती हूँ हर टाइम। तो गुरु के साथ एक्चुअली स्टूडेंट को, शिक्षक को हर टाइम मानसिक संबंध लेकिन बहुत जरूरी है, नहीं तो। और आजकल क्या है, सब लोग एक आइटम चाहिए, आइटम एक हो गया, एक वर्ड आजकल बहुत सुनने लगा है कि एक आइटम सिखा दीजिए, मेरे को प्रोग्राम है। आइटम मतलब एक कंस्ट्रक्ट करके एक आइटम सीख लिया, मतलब वो आइटम एक सीडी बना लिया, और आइटम पूरा इंडिया या इंटरनेशनली जो भी हो वो आइटम सीख लिया, मतलब और आर्टिस्ट हो गए, कार्बन कॉपी आर्टिस्ट हो गया। मैंने बता दिया क्या, हाँ ये है, ये मुद्रा सुंदर ऐसे लिखा हो, मतलब मैं एक आइटम, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी के बारे में मैं जस्ट, ऐसा हो गया है अभी, ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है कि आइटम चाहिए, एक आइटम चाहिए। वो आइटम को लेके वो लोग एक सीडी बना लिया, उसके बाद उन लोगों का बहुत दिन शायद आना जाना भी बंद हो गया गुरु के पास, क्योंकि उसको आइटम मिल गया। लेकिन वो आइटम क्या कर रहे हैं वो उन लोगों को पता नहीं है। लेकिन द फिलोसफी, व्हाट इज द फिलोसफी, वो आइटम के अंदर है, जो गंभीरता है जैसे बोलते हैं हम, उसके अंदर नहीं जाते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा में रहने से क्या होता है, पहले तो है वो सब्जेक्ट को, पहले तो हम सत्रिया सीखेंगे, वो पहले व्हाट इज सत्रिया डांस उसको जानना चाहिए। व्हाट इज सत्रिया डांस,
why जी Hankordev created this dance form. इतने सालों, why created, how created, why he wrote this type of साहित्य, पहले तो वो समझना पड़ेगा. वो डांस जो से हम लोगों का माटी अखड़ा से 64 काइंड ऑफ, तो वो किस लिए क्रिएट किया, उसका एक्चुअली आसाम के साथ, हमारा रीजन के साथ उसका कनेक्शन क्या है, उसको क्यों बोलते हैं इट्स अ क्लासिकल फॉर्म ऑफ आसाम, क्यों बोलते हैं क्लासिकल फॉर्म ऑफ तमिलनाडु भी बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोला, उसका अंदर आसाम का इमोशन क्या है. सब स्टेट का एक इमोशंस रहते हैं ना, सब स्टेट का अलग अलग, तो इमोशंस के ये जो जर्नी है वो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर नहीं रहते हुए नहीं सीख पाएंगे. खाली डांस सीख पाएंगे, लेसन्स सीख पाएंगे. लेसन्स जैसे मैंने बोला लेसन्स, तो विशारद तो कर लिया, कोई बोलते हैं मेरा विशारद खत्म हो गया, विशारद पास कर लिया, विशारद हो गया. तो वो लेसन्स, वो आइटम सीख लिया, लेकिन वो जीवन की जो सुबह से उठ के चाय पीने के टाइम भी आपको डांस को आपको साथ में ले जाना, रखना चाहिए हर टाइम. इफ यू वांट टू बी अ डांसर, इफ यू वांट टू बी अ डांसर, आप अगर चाय भी पी रहेंगे, खाना भी बना रहेंगे, कोई बात भी, कोई अगर पार्टी में भी होंगे, भी होंगे, जहाँ में भी होंगे, कोई तो डिस्को भी जाते हैं आजकल, जाना ही पड़ता है, तो डिस्को भी जाए, लेकिन आपका जो आर्ट फॉर्म है आपको समझना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए कि आई एम ए हॉट्रिया डांसर, एंड देन सब्जेक्ट यू हैव टू इनहेरिट इट योर, आपका माइंड एंड बॉडी एंड सोल में उसको लेके जाना है. दिस इज कॉल्ड गुरु शिष्य परंपरा. तो वो परंपरा को रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आजकल टाइम नहीं है. पहले तो गुरु का घर में जाके झाड़ू पुसाई करते थे हम, जैसे मैंने भुवनेश्वर में गई थी तो सुबह उठ के पहले झाड़ू पुसाई, जो गुरु जी को उसका पूजा घर साफ करके देना, उसके बाद क्या है डांस इज ए पूजा. तो मैं उस समय मेरे को फील हुआ कि डांस इज ए पूजा अलग से करने का जरूरत ही नहीं है. तो वो तो आजकल तो गुरु का घर का जाने का वो इतना टाइम किसी के पास नहीं है. तो लेकिन अपने घर पे ही हो, मैं जैसे बोला कि गुरु को साथ में रखिए, मन पे रखिए, गुरु को साथ में लेते हुए घूमिए, घर पे हो, बाजार पे है, जहीं पे हो, तब आपको वो डांस आप समझ पाएंगे सब, तब जाके वो डांस आप. और एक फोकस कीजिए, आपको अगर सच्चा डांसर बनना है टाइम लेना चाहिए, लेकिन फोकस, मतलब किसी को देख के मैं वो आइटम सीख के मैं अभी डांस कर लिया, ऐसा नहीं है. कि यू हैव टू फोकस योरसेल्फ, क्या करना है, क्योंकि मेरा ख्याल से न्यू जनरेशन के हाथ में ये परंपरा है. वो लोग अच्छा से नहीं सीखेंगे, गुरु शिष्य परंपरा को नहीं समझेंगे, तो बाद में जाके ये जो ट्रेडिशन खत्म हो जाएंगे, तो आगे वाला जो पीढ़ी आ रहे हैं उन लोग को पता ही नहीं चलेगा व्हाट इज गुरु शिष्य परंपरा. तो इसके लिए मेरा, आप लोग तो करते हैं स्पीक में कि तो करते हैं रेसिडेंशियल वर्कशॉप, करते हैं ना आप लोग स्पीक में रेसिडेंशियल करते हैं. हमारे यहाँ गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप स्कीम है हमारे यहाँ, गुरुकुल अनुभव स्कॉलरशिप, लेकिन वो बहुत जरूरी है. हाँ, ये तो जानते हैं सब लोग. तो स्पीक में की तो बहुत करते हैं इसके बाद ये वाला ट्रेडिशन रखने के लिए. तो बाकी, और मैं उस दिन भी कुछ एक इंटरव्यू में बोला था कि जो रेसिडेंशियल वर्कशॉप इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स, and they will learn what is actually art form, what is actually Indian culture, जो इंट्रीगेशन है सबका साथ, जैसे ब्रदर्स सिस्टर्स के जैसे हम लोग रहते हैं, वो भी एक सीखने की बात है. तो उस हिसाब से गुरु शिष्य परंपरा, मेरा ये अनुभव है गुरु शिष्य परंपरा के लिए. जी मैम, बहुत ही बखूबी आपने बताया गुरु शिष्य परंपरा के बारे में. और ये एक इम्पोर्टेंट टेक अवे है आपके इस बात से कि गुरु जी को आप कहीं पे भी हो, किस भी समय हो, हमें अपने अंदर मन में रखना है, तभी वो सफल होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा. जी बिल्कुल. तो मैम अरवेटा कथा हुदीमियात, जैसे आपने जर्नी के बारे में बताया, जर्नी ऑफ डांस, जर्नी ऑफ हॉट्रिया, दिस लिविंग ट्रेडिशन.
सो इसके जर्नी में आप किस तरह से, आप अभी तक कितनी सफलता आप अभी तक पहुंच पाई है, और स्पीक मेके का भी इसके साथ अगर आपका जुड़ा हुआ है तो वो जर्नी कैसा रहा है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सफलता के तो अलग बात है, उसके लिए तो कोई आर्टिस्ट शायद का मतलब डांस नहीं करते। इसमें पूजा, इसमें वर्शिप मेरा लाइफ है, तो डांस करते हैं। लेकिन सब समय मेरा एक मन में है कि हॉट्रिया डांस को लेके, क्योंकि आई एम ए हॉट्रिया डांसर, कि वो डांस को कैसे हम लोग परफेक्टली फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट्स कैसे किया जाए, कैसे काम किया जाए उसमें। तो वो लेके मेरा एवरी डे आई एम रेस्टलेस फॉर दिस पार्ट, कैसे मतलब क्या करे उसको लेके, बेहतर बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, लेकिन विद द ग्रामर एंड ऑल। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं कंटेम्पररी थीम में भी काम किया हूँ, क्योंकि कभी कभी करना पड़ता है। अभी तो कुछ एक होता है, कभी डिमांड होते हैं कि पहले तो मैंने किया था संगीत नाटक अकादमी का एक प्रोडक्शन था चंदाली का, रविन्द्रनाथ टैगोर की 158 बर्थ एनिवर्सरी में। तो उसमें मैंने सत्रिया डांस को लेके मेरे गुरुजी के साथ डांस का लेके वो कोरियोग्राफ किया था, फिर कविता को लेके किया, लेकिन ग्रामर इज हॉट्रिया 100%। तो वो एक है, और वर्कशॉप्स करना चाहिए है बाहर में भी, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। लेकिन ऐसे करके जितना हो सके सफलता में नहीं बोलूंगी, मतलब एवरी डे आई वांट टू वर्क ऑन इट, हॉट्रिया को लेके कितना काम कर से, मतलब पूरा एकदम विद द परफेक्शन, विद द ग्रामर, विद द ट्रेडिशन, उसको लेके, नॉट उसको छोड़ के नहीं, उसको लेके। और स्पीक मेके के बारे में आपने बोल रहे कि स्पीक मेके इट्स ए वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग भी एक नव जागरण, जैसे मैंने बोला था कि शंकर देव की बात नव जागरण शुरू हुआ था, तो स्पीक मेके ने एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था एक्चुअली। वो जो क्लासिकल आर्ट फॉर्म को लेके जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस अंदर भीतर गांव में स्पीक मेके ने जैसे किया, मैंने भी किया बहुत प्रोग्राम्स, मतलब लाइक डेमोन्स्ट्रेशन या परफॉर्मेंस के लिए, ये बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हम लोग जाते हैं स्कूल्स में, तो परफॉर्म करने के टाइम वो लोग इतनी अच्छा से लेते हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे वेरी टैलेंटेड, दे आर कीन टू नो व्हाट इज दिस डांस फॉर्म। वो लोग करते हैं, हम लोगों के साथ करने लग जाते हैं। तो ये तो पहले तो आप लोग ये अच्छा लगता है कि स्पीक मेके ने हर आर्ट फॉर्म को जानने के लिए मौका दिया। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया, एवरी लिटिल कॉर्नर जिसको कभी शायद हम लोग को भी पता नहीं कैसा है कुछ है, मतलब प्लेस, वहां पे भी पहले तो जानना चाहिए व्हाट इज दिस आर्ट फॉर्म। वो कौन लेके गया? स्पीक मेके। और स्पीक मेके के जरिए बहुत सारे गुरुओं को, बहुत स्टॉलर पर्सनालिटीज को, सबको देखने का, सुनने का मौका मिलता है। तो 100 अगर स्टूडेंट्स होगा तो उसमें से तो एक डेफिनेटली निकाल आएंगे कि वो आर्ट फॉर्म को सीखने के लिए। बिल्कुल, ये तो सबसे जरूरी बात है। तो स्पीक मेके, आई फील सो ब्लेस्ड एंड आई फील सो proud and I feel so fortunate that I am with Speak Meke। and आप लोग जब बोलते हैं कि ये कर volunteers, they are so good wherever I had go, they are so good, they are so sincere, so disciplined, so they are spending time like anything everywhere theoretical भी मिले थे। हमसे बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, क्योंकि हम लोग, लेकिन गलतियां तो सबसे होती है, हम तो we are not God, we are not भगवान तो नहीं है, तो गलतियां भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। This is also a good memory। लेकिन आप लोगों की बड़ी बात ये होती है कि हमारी गलतियों को आप ओवरलुक करते हैं, और आज जो आपने हमें इतनी जानकारी बढ़िया सी दी है, और जितना
इंटरेस्टिंग बना के दी है। मुझे लगता है कि हम 1-2 घंटे और कंटिन्यू कर सकते थे लेकिन हमारे पास टाइम भी आ रहे हैं 10 बजे से। जी जी, तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है। मैं जी। सबको ये बताना चाह रहा था, जो बाय द वे चेतन ने बीच में ही बता दिया, आप में किसी को अंदाजा नहीं लगा होगा कि मैडम जो अनीता जी हैं कल फिसल गई थी और उनके कंधे में जोर की चोट आई है, फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर के पास फ्रैक्चर ही हो गया है। फ्रैक्चर हो गया है, डॉक्टर के पास जाना पड़ा था और अभी उन्हें बहुत दोबारा से इन्वेस्टिगेशंस होंगे। तो इतने किसी के अगर फ्रैक्चर हुआ होगा वो जानता होगा कितनी तकलीफ होती है, लेकिन आपको किसी को बातचीत में उनके जरा भी महसूस नहीं हुआ नहीं होगा होने दिया। हाँ, ये कमाल था मैडम का। ये और कमल मेरी मेरा नहीं था, मेरा, मैं बोलती हूँ ये कमल इज ओनली डांस का, डांस इज माय पावर जी ऑल द टाइम Wow. टू फेस ऑल सिचुएशन, टू फेस ऑल सम, जो भी हो जीवन में, तो, जो भी हो, जी, डांस इज माय पावर टू फेस ऑल दिस थिंग। तो माय प्रणाम टू माय गुरु एंड माय डेफिनेटली। हम लोग आपको एक बार को तो सोचा रेस्ट दिया जाए, लेकिन हमें लगा कि आप क्योंकि डांस से इतनी जुड़ी हैं, शायद आपको और ज्यादा जो फ्रैक्चर से ज्यादा तकलीफ होती अगर आप हमारे बीच में ना आती तो हाँ जरूर। आई एम थैंक यू, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं इस वजह से मैं आप लोगों के साथ बात किया डांस के बारे में, थोड़ा पेन को भी हल्का हो गया अभी, पेन ऐसा जी, लग जी, रहा है। बिल्कुल। तो हम लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी जानकारी दी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, आपका धन्यवाद कहते हैं। और एक चीज और तिवारी जी, एक चीज, छोटी सी चीज एक रह गई है, 2 मिनट के लिए बस। एक सवाल, आखिरी सवाल ये था मैम का कि जितने भी हमारे यंग बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स ऑफ दिस डांस फॉर्म है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती है? एक छोटा मैसेज अगर आप फटाक से दे दो। तो मैं बोलती हूँ कि जो भी काम करो मन से करो, पहले तो मन से करो, डेडिकेटेड करो, फोकस करो, और गुरु का सब समय मन पे रख के श्रद्धा से काम करो। तो वो जो कला है, आप अगर श्रद्धा करोगे, आप अगर कला को प्यार करोगे, तो वो कला जो है वो आपको भरपूर देंगे आशीर्वाद। ये मैं बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका कि आपने टाइम दिया और इतने तकलीफ के बावजूद आप हमारे बीच में आई। आपका आभार। और हमारे जो साथ में चेतन जुड़ गए थे, हमारे वॉलंटियर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, आपका भी। टेक्निकल टीम में रूप ज्योति थे, उनका भी धन्यवाद बहुत देता हूं मैं कि उन्होंने अच्छे से हम लोगों को बातचीत करने दी। हमारे बीच में अन्वेषा जी हैं, उन्होंने कन्वे किया अपना ग्रीटिंग्स और अपने धन्यवाद अनीता जी को। उसको भी अन्वेषा को भी मेरा बहुत सारा प्यार। जी जी, अन्वेषा जी वही अभी आगे का काम वही देखेंगी। जैसे आपने दिया उनको विशेष दी कि वो आगे लेके जाएंगी, तो हम यहीं पे अब आगे के काम के लिए, वर्कशॉप के लिए जो मॉडिटर को देखें। थैंक यू, जो भी हो, थैंक यू सो मच मैम। चेतन बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। रूपज्योति थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड नमस्ते तिवारी जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत आपका हाथ